Hello everyone, how are you? I hope you all will be fine. I also fine. Today we are on the 10th step of our 10th journey. यानी आज हम अपने 10th journey के 10वें पड़ाव पर हैं. ये 10वां पड़ाव कौन है? Future progressive. We have completed present tense. We have completed past tense. We are going on with future time. As I told you before, as it is having no specific verb form, so that it is not counted as future tense, it is future time. We have completed simple future, and today we shall learn future progressive. What will be our tomorrow's planning? कल क्या हम कर रहे होंगे? तो कल के काम के लिए, कल के प्रोग्राम के लिए, कल जो इवेंट्स होने वाले हैं उसको अगर हम इसका एक प्लानिंग बताएं, एक प्लानिंग अपना एक प्रिपेयर करें, तो इसके लिए कौन से वर्ब फॉर्म हम यूज करेंगे? That we shall learn today. So it is future progressive, and the structure of this verb form, this tense, it is shall, will plus be plus base form of the verb, यानी main verb with ing form. जैसा कि हम प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते थे. इन दिस फ्यूचर टाइम वी विल यूज shall or will, because as it is having no specific verb form, right? So affirmative sentence में अगर हम अपने सेंटेंस बनाए अफर्मेटिव में, फर्स्ट पर्सन आई, देन प्लूरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन, आई विल बी गोइंग, आई शैल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग, यू शैल बी गोइंग में हम जा रहे होंगे, हम खा रहे होंगे. You will, he or she will be going, they will be going. नेगेटिव में I will not be going, I shall not be going, you will not be going, he or she will not be going, they will not be going. और इसका अगर हम इंटरोगेटिव में यूज करें तो कैसा होगा हमारा सेंटेंस? फर्स्ट shall, देन आएगा सब्जेक्ट, shall I be going, then question mark. Will you be going, then question mark. He or she will, shall I be going, will you be going, will he be going, will she be going, will they be going. ये हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव में अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो. और ये जो हमारे सेंटेंसेस है नेचुरल कोर्स में, इसको आप नोट डाउन करिए. दिस फॉर्मेट, ये जो अभी में ये जो फॉर्मेट हमने बनाया, इसको अगर हम कंप्लीट सेंटेंस में बनाए, सो नोट इट डाउन. दिस फॉर्मेट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट that is expected to be taking place in future in a natural course. क्या मतलब हुआ? जो काम जनरल तौर पे आम तौर पर हम करने वाले हैं भविष्य में, हमारी जो प्लानिंग के हिसाब से, इसको अगर हम सेंटेंस में प्रयोग करें, एक कंप्लीट सेंटेंस, फुल फ्लेज्ड सेंटेंस, देन ये सेंटेंस ऐसे बनेगा. When winter, मैंने अपने हिसाब से एक सेंटेंस बनाया है. When winter arrives, ये हमारे फ्यूचर प्लानिंग है. When winter arrives,
birds will be coming here. ये जैसा इन जनरली होता है। साइबेरियन बर्ड्स वो हमारी चिलिका में आते हैं हर विंटर में। और एक अभी समर चल रहा है, धूप ही धूप है। अगर हम एक कोई बीज बोएंगे तो पौधा तो उगेगा नहीं, बारिश होगी उसके बाद कोई सीड्स विल बी स्प्राउटिंग आफ्टर ए रेनफॉल। ये एक प्रेडिक्शन है। सपोज हमने एक बीज बोया है, हम इंतजार करते हैं कि एक पौधा उगेगा, तो हमारा एक प्रेडिक्शन होता है बारिश होगी तो सीड्स विल बी स्प्राउट नो। तो ये जो हमारी सेंटेंस हम बनाएंगे बहुत अच्छी तरह से हमारे सेंटेंस बनेंगे और फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से। जैसे अगर हम सही तरह से हमारे जो वर्ब फॉर्म को कंपोज करें सेंटेंस में, then we can make a full-fledged sentence using future time verb element means shall or will, and we can also make sentences in other ways in this structure means future progressive में भी, जैसे अभी हम जानेंगे। अच्छा, आज we have known future progressive is having no specific verb form, no, but we have arrangements, we are plannings, we are programs that we are going to materialize in future, we are going to execute in future. So that type of sentences, how can we use, how can we prepare, how can we make, what verb forms we are having to use to make such kind of sentences. This is the format, this is the definition. First you note it down, listen, then note it down, then you can better understand. See, as you know, future time is having no specific verb form unless will, shall. So present progressive tense used for the future time sentence, right? What? Present progressive tense used for future time sentences when we talk about something that we have planned or a program made for a particular time in the future. तो क्या है, हम क्या करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का जो वर्ब फॉर्म है उसको हम यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस में, जो कि हमारे फ्यूचर टाइम में जो प्रोग्राम हम बनाएंगे, जो प्लान को हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे कैसे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के जो वर्ब फॉर्म है उसको उसके हिसाब से। लेकिन वी हैव जनरली यूज सम फ्यूचर टाइम एडवर्ब्स, उसको कैसे हम प्रूव करेंगे कि दैट सेंटेंस इज इन फ्यूचर टाइम प्रोग्रेसिव। तो सम फ्यूचर टाइम एडवर्ब्स वी आर हैविंग टू add, like soon, tomorrow, next Monday, that will indicate the future, otherwise that tense will be referred to the present time reference, right? So क्या है, we have generally used some future time adverbs like soon, tomorrow, next Monday, that will indicate the future, otherwise our sentence will be written in present time, that will refer to the present time, right? So क्या है, इस तरह से हम सेंटेंस कैसे बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, I am going to cook a special dish, I am going to cook a special dish, and tomorrow, it is that tomorrow, this is indicating that tomorrow ये
जो आने वाला कल है, कल मैं एक स्पेशल डिश बनाने जा रही हूं। तो यहां फ्यूचर टाइम को कौन इंडिकेट करता है? टुमारो, राइट? दैट आई हैव ऑलरेडी प्लान, जो कि हमारे प्लानिंग होता है, जो प्रॉपर प्लानिंग हम करते हैं, आगे जो हम करने वाले हैं, हम ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। इसको हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज करें? टुमारो इज हॉलीडे, कल एक छुट्टी का दिन है। We have going to the temple to offer a पूजा। हमारा कल की प्लानिंग है कि कल एक छुट्टी का दिन है, तो हम कल मंदिर जा रहे हैं पूजा के लिए। और ये प्लान we have already decided to do it. So in this way means using present progressive reference, we can use the sentences to in our future time progressive. And also we are having some other structures to अच्छा, फ्यूचर टाइम रेफरेंस को हम इस तरह भी यूज करेंगे अपने सेंटेंस में। बी गोइंग टू प्लस मेन वर्ब, दैट इज यूजेस फॉर फ्यूचर टाइम रेफरेंस। और स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब्स लाइक इज, आम, आर प्लस गोइंग टू प्लस V1, राइट? जनरली बी गोइंग टू हैज 3 फॉर्म्स, जैसा कि अभी मैंने बताया, इज, आम और आर। और ये चेंज होते हैं सेंटेंसेस में जब हम अपने सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, ठीक है? कैसे? फर्स्ट, आई एम गोइंग टू फिनिश माई हाउस होल्ड वर्क। हियर आई द फर्स्ट पर्सन, एंड यूजुअली एज यू नो am always used with the first person. I am going to complete my household work. And here he, she, Neha, Ravi, whoever, third person singular number, बी वर्ब को कौन सा यूज करेंगे? इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट। या इस जगह आप किसी को भी, कोई भी थर्ड पर्सन को आप यूज करके ऐसे अपने सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, वी, यू, दे, इसके साथ कौन सा बी वर्ब यूज होगा? आर। गोइंग टू अरेंज ए पार्टी, राइट? सो ये जो बी वर्ब को हमने अपने सेंटेंसेस में यूज किया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, whether it is the first person singular number, उसके साथ कौन सा यूज होगा? आम। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ इज। फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म, उसके साथ हमने आर का इस्तेमाल करते हैं, राइट? एंड फ्यूचर टाइम रेफरेंस का सम अदर यूसेज भी है, जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, जो हम प्रेडिक्शन करते हैं, उसको हम अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज। नोट डाउन द बी गोइंग टू स्ट्रक्चर we use in our sentence when we talk about the future fulfillment. क्या? The future fulfillment of a present plan, जो प्लान हम अभी करते हैं, हम क्या करने वाले हैं, इसका प्रिपरेशन हमने अभी से शुरू कर दी, इसको हम फ्यूचर में एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो बी गोइंग टू, वी विल, दिस स्ट्रक्चर वी शैल फॉलो इन आवर सेंटेंस। कैसे? आई एम गोइंग टू शिफ्ट माई न्यू हाउस टुमारो। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू इट, आई हैव प्लान फॉर इट। कल को एक काम होना है, एक बड़ा वाला काम होना है, इसके लिए जो प्रीवियस, जो पहले तैयारी होनी होती है ना, इसको हम बहुत पहले से करते हैं, उसके बाद उस काम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, सही ढंग से हम कर सकते हैं
और इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। तो ये जो बी गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, सब्जेक्ट के हिसाब से ये जो बी वर्ब चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन के लिए मैंने आम यूज किया। और एक और सेंटेंस हमने यहां लिया है, दे आर गोइंग टू विजिट द बुक फेयर दिस इवनिंग। आज शाम को शहर में एक बुक फेयर है। ये जो आज होने वाली है इसकी प्रिपरेशन कई दिनों से पहले हो चुका है। एंड दे हैव प्रिपेयर्ड, दे हैव डिसाइडेड टू विजिट दिस बुक फेयर। कब जाना है? दिस इवनिंग, आज शाम को जाना है। इस तरह कई ये जो हमारे, मैंने पहले भी कहा था, हमारा ये जो टेंस होते हैं ना, अगर हम अपने स्पोकन स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो ये पर्याप्त होते हैं अगर हम सही ढंग से, बारीकी से, पूरी की पूरी जो 3 फॉर्म होते हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके जो वर्ब फॉर्म होते हैं, इनके यूसेजेस होते हैं, इसको अच्छी तरह से हम समझ लें, देन we can never be fail anywhere in to prove our spoken skill, right? And this is all about our future progressive time. And if you have liked this class, then as a moment of your love, give a thumb impression, give your valuable comment, what you have observed from this class, negative, positive, whatever, you must mention in the comment box. Share this channel as much as you can and subscribe my channel if you are new in this channel, so when I upload any new video, the first notification will go to you. And thank you for joining my class. Thank you for watching. Love you all. Bye bye.